Samay before India's got latent was with OML, and now he has left OML. He is going independent. ऐसा क्या था जो समय ढूंढ रहा था और OML उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पाया? Sometimes as an artist, you feel कि hey maybe independently I want to do things. Zomato के रोस्ट में जाके स्विगी की टी शर्ट खोलना, इट्स अ वेरी हार्ड मूव. सो उसका वो माइंडसेट या प्रोसेस क्या है? कितनी ब्रांड्स है जो अपने सीईओ को बैठा के बोलेंगे कि यार प्लीज रोस्ट? There is a lot of भसड़, दिक्कत, चिट in all of that ticket space. This is the best time to be in live entertainment. Coldplay sold out हो गया, दिलजीत sold out हो गया, Dua Lipa sold out हो गया. But there are events like Maroon 5 tickets were available till one day before as well. It's a very risky industry. You talk about profitability. If you can just break down. यार ये मैथ बहुत वेरी करता है, which is why I wouldn't want to comment, because if you look at someone like a Zakir, his shows have more tech than many music shows because his setup, his production is that big. One artist you are most excited to see grow under OML? This definitely has to be Kullu. The way Kullu understands the audience, the way he is growing. He's right now in Australia touring. What is it that Tanmay figures out while writing, right, that the other people who are non-associated with Tanmay can't figure out? Obviously, Tanmay is one of the brightest minds in the country. Outside of just being a creator, he is the strategic thinker like no one else, right? He is consulting for so many brands just as a consultant. When we think about artist management, when we think about content, when we think about influencers, there are a lot of things that comes to our head कि ये सब चलता कैसे है and how much they make, वो metrics क्या हैं, वो कौन सी चीज़ों पे काम करती हैं एक इन्फ्लुएंसर, एक कंटेंट क्रिएटर, एक कॉमेडियन, एक म्यूजिशियन की दुनिया, जिनके बारे में शायद कोई बात नहीं करता है. बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट बिकॉज द शो नेम इज कॉल हिम क्यूरियस एंड आई वॉज रियली क्यूरियस to know all of this stuff about the influencer marketing, content creation, branded content and other details. So we have Tushar with us, who heads OML, who is the CEO of OML, and Tushar has been positioned in this role 5 months back. OML as a company has been in the business for over 2 decades. Their primary focus is on artist management, content creation, and they have a tech platform as well. So we are going to talk all of that. Thank you Tushar for being on the show. Basically, I summed up the OML company in 3 buckets: artist management, content creation, and tech. So if I have to ask the core business or the core dhanda of OML, how do you guys operate? Awesome, thanks for having me on the show. We basically operate OML. No, we've been operating in the last 20 years in this whole space that you spoke about. Yeah. The 3 areas we really operate in are content, artists, and tech. And that's how I like to explain it to people. These are the 3 buckets. We have a bunch of different businesses, but they all come into these 3 buckets, and they've been designed for that reason. Ki every bucket of business needs to be able to add value to another. Okay. While har ek business alag hai, the idea is for an ecosystem play, and that's the ecosystem that we've created. We're not restricted by a category. If we think that we can add value to you as an artist, if we can bring value to you to grow into other parts of talent which you've not really explored, then we like to work with you. Okay. And that's our oldest business that still exists. So that is your criteria of signing up an influencer or a content creator, that okay, this is the set of things that this person is doing, but I see a potential that this person can also do X, Y or Z. Then you will hire him, and then you will might train him in the next 2-3 years, and then if he succeeds, then it's a good bet that you played. And if he doesn't succeed, then what happens after that? If they don't, so they hire us. We don't hire them, right? Because they are our clients. They hire us to work with them. I think one of the things we always do, right, is that, hey, okay, if this thing is not working out, what do we do next? And that is always an iterative process. Say, for example, if you look at comedians, right? Now, comedians, obviously the most logical thing is live shows. Yeah. That is the first thing. That's what is the most interesting. That is their core business. That's their core business, talking to, like, performing in front of live audiences. Some comedians are great also with content, but not all, right? And that's something to always remember. Some comedians will be great at putting out stand-up videos because they're just amazingly funny, and that's one part of it. Yeah. For example, someone like Varun Thakur has hosted cricket on Star Sports. He's hosted large event shows. Someone like Rohan Joshi also does the same, but that doesn't mean everyone can do that. Yeah.
So what we try to do, and especially with newer comics as we're working with, the idea always is, hey, how can we explore what are the different avenues? And if something works, great. If something doesn't work, we will always try to provide the support in terms of, can we pull in someone for training? Can we bring in some kind of exposure that they've not had? और फिर हम कोशिश करेंगे. वो succeed हो जाता है तो then okay, that's a new direction. That's a new direction. हाँ जी. Samay before India's Got Latent was with OML. And now he has left OML, he is going independent. Why? मतलब ऐसा क्या था जो समय ढूंढ रहा था और OML उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पाया? We love Samay. I mean, and right now with seeing his show succeed makes us more happy than anything. From when he joined OML, etc. Right? Everyone has their own trajectory. A lot of artists, like say Virat Kohli has gone independent very recently. Yeah. Sometimes as an artist, you feel कि hey, maybe independently I want to do things very differently, or my new path is in a very different direction, and that's the time when you sort of go your own way. And I think the important thing is कि you make sure that the whole ecosystem still works with you. We still work with Samay. Okay. Right, we still work with a lot of artists who've left us. Obviously, if you're an OML managed artist, you get benefits which no one else gets. But I think that relationship continues. Sometimes relationships also end badly, but luckily for us, these have not been bad endings. These have not been bad endings. And we continue to work with Samay also. Zomato के रोस्ट में जाके स्विगी की टी-शर्ट खोलना, it's a very hard move. So उसका वो mindset या process क्या है? He's a comic who is not scared of pushing the boundaries. Yes. और वो भी उसके लिए काम करता है because his audience also likes that. You can't be a comic who pushes the boundaries, पर आपकी audience को चाहिए ही नहीं वो boundary pushing. And I think जैसे हमने ये Zomato वाला जो किया था campaign roast वाला, उसमें भी it was his creative genius to say कि नहीं मैं ये करूँगा. But you knew this was planned. मतलब you guys knew, the managers and all knew. Management will know, right? Also you have to have a brand who is gutsy enough. And वहाँ पे we have to give to Zomato and their full team कि यार कितनी brands है जो अपने CEO को बैठा के बोलेंगे कि यार please roast, right? And I think इंडिया में ऐसी brands है, Zomato obviously being one of the leading brands in content, उनको आता है, उनका social media is one of the best. तो I think वो match of that kind of artist and that kind of a brand rarely होता है, पर इस instant में हुआ. But हाँ, जब होता है then it creates magic. Yeah. One of the thing which is very interesting and which is the trend as well, that every brand which has nothing to do with content is delving into content. Yes. What is the ROI they are getting? नहीं, ये तो बहुत I think it's becoming a more and more important question today, right? And brands are now started spending a lot on content. एक तरफ इस किस्म की brands है like Zomato, Swiggy, Netflix हो गया, जो absolute leaders हैं इसमें. बिकॉज उन्होंने कंटेंट से इतना इक्वेट किया है ब्रांड लव. आज भी आप बोल लो Zomato क्या है, फूड डिलीवरी ऐप है, बट लुक एट द अमाउंट ऑफ कॉन्वर्सेशन अराउंड Zomato, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द जीनियस ऑफ द मार्केटिंग टीम कि उन्होंने वो कॉन्वर्सेशनल बना लिया अपने आप को. बट दैट इज वन एग्जाम्पल, वो एक कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड हो गया, राइट? ऑन द अदर हैंड यू हैव B2B ब्रांड्स ऑल्सो हु आर नाउ डूइंग जो कॉन्टेंट कर रही है, क्योंकि उनका टारगेटिंग का मेथडोलॉजी भी कंटेंट ही हो गया है. तो इस टाइम में आप कंटेंट के साथ जो भी आपकी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है आप वो हिट कर सकते हो. इट इज़ वेरी रिक्रेटिव और वेरी इजी फॉर अ ब्रांड कि मैं किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करूं और मैं उससे बोलूं कि ये रहा मेरा प्रोडक्ट, इसका प्लेसमेंट कर दो और इसके बारे में ये 4 फीचर्स हैं, ये बोल दो जी. बट ऑफकोर्स वहाँ पे वो पेड ऑडियंस को समझ में आ जाता है. सो व्हेन अ ब्रांड सक्सेसफुली साइंस अ क्रिएटर और अ इन्फ्लुएंसर, apart from putting their logos or their features into that content, what are the other things they look at? Right. I think एक तो ये चीज़ establish हो गई है कि people like content from influencers and creators more than an ad. Yeah. When an ad comes, sometimes there's कि यार ये तो ad है, skip कर देते हैं. I think वो skip ads पे बहुत ज़्यादा होता है, influencers पे थोड़ा कम होता है than ads, काफ़ी कम होता है. जब आप ad कर रहे हो आप प्राउडली बोलो कि भाई दिस इज एन एड. योर इन्फ्लुएंसर्स ऑल्सो नो कि यू हैव टू मेक मनी, राइट? बट व्हाट दे विल रिलेट टू इज कि भाई ये ऐसे तो नहीं कर रहा कि ये स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा है. आई थिंक दोज आर वन ऑफ द वर्स्ट वेज ऑफ डूइंग इन्फ्लुएंसर. इफ इट इज कमिंग इन अ ऑथेंटिक वे, इफ इट इज इंटीग्रेटेड इन द कंटेंट, देन मे बी द ब्रांड माइट फील लाइक यार मेरा कंटेंट, मेरा प्रोडक्ट 3 सेकंड के लिए ही दिखा, बट द इम्पैक्ट इट विल लीव वो शायद से बहुत ज्यादा हो ऑन द अमाउंट दे हैव स्पेंट. तन्मय भट्ट and Vishal Dayama and the team which AIB had,
they have ventured into ads as well. Yeah. They are writing great ads. Every ad Tanmay is writing is going viral. People think that he knows that secret magic कि आज की तारीख में ad बनाना कैसे है. What is it that Tanmay figures out while writing, right, that the other people who are non-associated with Tanmay can't figure out? Right. That the pulse of the audience. Absolutely. I think Tanmay and Moonshot, which is his agency, which with Vidyavaya, where they make these amazing ads. The one thing as a creator that they understand is their audience. And I think while you have obviously great creative teams at advertising agencies, maybe they don't understand how the internet works as well as a creator does. Yeah. So even recently we worked on an ad campaign for Canva. Again, Canva is an amazing brand to work with. But हमने क्या किया? We asked Ashish Shakya to come into the project as well. So Ashish Shakya and our creative head together sat and built out this campaign. Okay. So the power of जो creators के पास है, The insights that they the bring to the insights table. that they get, and उनको समझ में आता है how to win the internet because they have done it for their own content and they do it day to day. Obviously, Tanmay is one of the brightest minds in the country. Outside of just being a creator, he is the strategic thinker like no one else, right? He is consulting for so many brands just as a consultant, where he's not writing ads for them, but they want to ask him कि भाई क्या करना चाहिए? What's the next move? What's the next market move? trending? How is the market trending? What is the audience thinking? और क्योंकि ना creators के पास ये amazing चीज़ होता है कि immediate feedback. आप कुछ अमेजिंग करोगे तो आपके फैंस अमेजिंग बोलोगे, आप कुछ खराब करोगे तो वो आपको बता देंगे भाई ये तो हमें अच्छा नहीं लगता. OML also owned a ticketing platform called Insider. Yes. You guys sold it 3 years back. Yes. And now there is a lot of bhasad, dikkat, chit in all of that ticket booking space. And also because concerts and shows are going way bigger ticket size than ever. Yeah. So वो उस पूरे market में चल क्या रहा है and how much does our ticketing platform make? Got it. So I think live entertainment in India, this is the best time to be in live entertainment. I think last 2 years have been amazing. While as OML हमने तो decide कर लिया था कि हम strategically live events exit कर रहे थे, तो जैसे आपने कहा हमने insider भेज दिया, हमने live events. It is not contradictory. अभी आप कह रहे हो कि 2 साल बहुत अच्छे रहे हैं live event industry के लिए, and you guys strategically decided to leave that industry. Don't you feel कि वो थोड़ा जल्दी हो गया? We didn't, क्योंकि वो while the industry is growing, हमें ना focus करना था ये जो 3 चीज़ हम कर रहे हैं, content, artist और tech. तो obviously FOMO होता है जब आप event पे जाते हो कि यार हम काम नहीं कर रहे हैं इस event पे, but I think strategically at a group level वो right decision था. पर हम live events अपने artist के लिए तो अभी भी कर रहे हैं, मतलब maybe not as producers, but we will enable anyone to build a live career क्योंकि हमारे पास वो है experience. जो इंडस्ट्री की बात पे आए तो वहाँ पे ग्रेट टाइम टू बी हियर. लास्ट 2 years हैव बीन ग्रेट. हम देख रहे हैं बड़े से बड़े नाम अब इंडिया आ रहे हैं, राइट. मुझे पेसिमिस्ट नहीं बनना, बट द रियलिटी ऑफ इट इज़ ये देखना है कि 2 साल और सस्टेन होगा कि नहीं. तब हमें पता चलेगा कि दिस इज नॉट जस्ट अ स्पाइक, टेम्परेरी नहीं है और क्रैश नहीं हो रहा. द दूसरी जो रियलिटी ये भी है कि टॉप 10% इवेंट्स ही सोल्ड आउट हो रहे हैं, राइट. कोल्डप्ले सोल्ड आउट हो गया, दिलजीत सोल्ड आउट हो गया, डुआ लिपा सोल्ड आउट हो गया. But there are events like Maroon 5 tickets were available till 1 day before as well. Okay. Right? So every show is not a sold out show. And that is a reality of it. It's a very risky industry. And every artist is not going to sell out. अगर आप बहुत high relevancy हो और बहुत hype है आपके बारे में, yes, you will sell out. But if you are a mid-tier artist, whether that's music, comedy, dance, whatever, you still have to do the mehnat. The marketing still has to kick in. You are still dependent event producer होके आप sponsorship पे अभी भी dependent हो. ये international markets की जैसे evolve नहीं हुआ है जहाँ पे ticket sale से आप सिर्फ festival चला सकते हो. India में still sponsorship is a very important part of profitability. So you talked about Coldplay, Diljit and all of that. The ticket size, the average ticket size is somewhere around 10,000, 15,000. And that is for a person who is going to stand there in a crowd of 10,000 or 15,000. कोई 15,000 खर्च करके भीड़ में खड़े होके ढक्का मुक्की में एक कॉन्सर्ट देखने जा रहा है. डोंट यू थिंक ऑल ऑफ दीज टिकटिंग पार्टनर्स हु आर कीपिंग द प्राइसेस सच हाई, अगर वो उसकी जगह कुछ फ्रीबीज दे दे, बिकॉज इंडिया जेन्युइनली वर्क्स ऑन फ्रीबीज, कि कुछ फ्री मिल जाए मज़ा आ गया. तो अगर 25,000 की टिकट है या 15,000 की टिकट है
और अगर मुझे उसमें 1,000-2,000 रुपए का ड्रिंक का कूपन मिल जाए, वो वाला एक मॉडल अभी तक किसी ने भी क्यों एक्सप्लोर नहीं किया है, या फिर इतना प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कितना प्रॉफिटेबिलिटी होता है इन अ कॉन्सर्ट कि हम किसी को कुछ फ्री नहीं दे सकते, द ऑडियंस विच इज कमिंग देयर, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस के लिए आ रहा है ना. बिल्कुल. नहीं, आई थिंक ये ना एक बहुत फाइन बैलेंसिंग एक्ट है. एक तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि टिकट्स 10,000 तक भी बिक रही हैं, बिकॉज फाइनली आर्टिस्ट जो इतना मेहनत करते हैं, जो आपको फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब में वो सारी चीज़ें डाल रहे हैं, राइट, उनको अब एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि वो भी अब अपना अर्निंग कैपेबिलिटी बना पाए. तो हम इंटरनेशनली जब जाते हैं हम आराम से टिकट्स के पैसे दे देते हैं. इंडिया में वो बहुत टाइम तक हो ही नहीं रहा था कि आर्टिस्ट बोल सके कि यार चलो प्राइसेस बढ़ा दें. वो फाइनली अभी हो रहा है. तो आई फील आर्टिस्ट के लिए दिस इज़ अ ग्रेट टाइम कि आप टिकट प्राइसेस डिमांड कर सकते हो. बट आप एग्जैक्टली आप जो बोल रहे हो ना वो बहुत ही करेक्ट है कि हाउ डू वी मेक कंज्यूमर्स के लिए हम एक्सपीरियंस कैसे बेटर करें. ठीक है, हम 10,000 15,000 लेके जा रहे हैं कॉन्सर्ट में, बॉक्स ऑफिस ठीक से रन किया गया क्या, हम लाइन में सिर्फ 15 मिनट थे कि 4 घंटे थे. आई थिंक फेस्टिवल प्रोड्यूसर्स चाहते तो है तो वो दे सकें, बट आई थिंक इट डज बॉयल डाउन टू कि कैसा हो रहा है प्रॉफिटेबिलिटी पूरा इवेंट का. बट आप कहीं सही बोल रहे हो. आई थिंक द नेक्स्ट थिंग टू स्टेप अप एंड टू लेवल अप इज़ द एक्सपीरियंस. जैसे जहाँ तक हमें सुनने में आया था कि एक दो ऐसे कॉन्सर्ट्स हैं जो चाह रहे थे इंटरनेशनल आर्टिस्ट इंडिया आए, पर उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मिला. तो जैसे आप टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट ले लो, द इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड है फॉर अ टेलर स्विफ्ट इवेंट टू हैपन इन इंडिया, अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ आवर स्टूडियोज हैव, नन ऑफ आवर स्टेडियम्स हैव, बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ टेक, द अमाउंट ऑफ स्क्रीन्स, द अमाउंट ऑफ पायरो जो सारा आता है उनके साथ, वैसा वेन्यू अभी है ही नहीं. And you talked about profitability. If you can just break down of a concert, तो वो क्या हो रहा? How much the artist take, how much the management take, how much goes to the ticketing, how much goes to different parts of it? यार ये मैथ बहुत वेरी करता है, which is why I wouldn't want to comment, because for a very big artist it could be 80%, but for a very big artist in a very unique venue it can be very different. तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर है एज एन आर्टिस्ट, एंड ऑल्सो एज द एबिलिटी टू टेक रिस्क कि एज अ आर्टिस्ट आई यू सेइंग कि ठीक है मैं सारे टिकट्स खुद से ही बेच लूँगा बिकॉज आई डोंट नीड एनी मार्केटिंग मनी. ऐसे भी हैं आर्टिस्ट जो एक लिंक डालते हैं और वो सेल आउट हो जाता है 2 दिन में. बट एज अ आर्टिस्ट आप ऐसे हो कि आपको अपनी अवेयरनेस बढ़वानी है, तो फिर आपको मार्केटिंग पे खर्च करना है, तो वो सीधा आपके PNL पे हिट करेगा, राइट. एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, कॉमेडियंस are one man act or one woman act. Yeah. All you need is a mic. Yeah. You don't need a band. You don't need equipment etc. पर ये भी if you look at someone like a Zakir, his shows have more tech and more screens than many music shows because his setup, his production is that big. तो ये बहुत वेरी करता है, एंड आई थिंक वो बीच एट द एंड ऑफ द डे आपको आपके मैनेजमेंट के साथ काम करके फिगर आउट करना है कि हमें क्या अचीव करना है. सी टिकटिंग प्लेटफॉर्म का एक चीज़ तो फिक्स्ड होता है, टिकटिंग प्लेटफॉर्म फी, जो आप जैसे आप जब टिकट खरीदते हो आप भी पैसे देते हो और आर्टिस्ट को भी देना पड़ता है क्योंकि वो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ फेयर, उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है, उनको देना चाहिए. प्रोड्यूसर का क्या होता है कि वो रिस्क ले रहा है कि भाई इस आर्टिस्ट में हम डालेंगे अपना भरोसा, एंड इतना तो आर्टिस्ट का खर्चा है, इतने हम टिकट्स बेचेंगे, इतना वेन्यू कॉस्ट है, इतना हमको लाइसेंसेस पे लेने हैं कॉस्ट, एंड फिर वो जो आपके पास बचता है वो तो गैम्बल है, इट्स लाइक अ बिजनेस. एंड आर्टिस्ट का क्या होता है, अगर आप बिग इनफ आर्टिस्ट हो आप ये बोल सकते हो कि यार ये मेरा फ़ी है. अब ये 1 लाख रुपया या 50 लाख रुपया है, वो वेरी करता है फ्रॉम आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, पर ये हमारा फ़ी है, इतना फ़ी हमें बनाना है. ये है नॉन रिस्क मॉडल. पर अगर आप रिस्की हो और आप बोलते हैं यार हमारे टिकट्स तो बिकने ही बिकने हैं, हम को मिनिमम फी चाहिए ही नहीं, जितने टिकट्स बैठेंगे उसके हम X% ले लेंगे, वो हायर रिस्क मॉडल है. Now that higher risk model is obviously high risk model that comes from the confidence that I know that I can sell. Absolutely, I know I can sell, and where also, because there will be a big artist who can sell out all the metros, but might not be able to sell out a Ludhiana, or might not be able to sell out a smaller town. But उल्टा भी हो सकता है, ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो स्मॉल टाउन्स तोड़ के बेच देते हैं, पर बैंगलोर में कोई नहीं जानता उनको, तो जब वो बैंगलोर पहुंचते हैं दे आर नॉट एबल टू सेल. तो ये बहुत ही आई थिंक अलग अलग इसमें चीज़ें हैं जो आपको एडजस्ट करनी पड़ती हैं टू फिगर आउट कि बेस्ट क्या वे है, जो आपका मैनेजमेंट करता है आपके लिए. जाकिर, बस्सी,
Samay, Kanan, Biswa, these are all top of the funnel artists. Yes. जिनके लिए टिकट्स बेचना, जिनके लिए ऑडियंस गैदर करना is not a very big issue. जिनके लिए पैसे कमाना is not a very big issue. The people who are out of that top 10, जो नीचे के 11 से 50 वाले कॉमेडियंस जो हैं या 11 से 50 वाले आर्टिस्ट जो हैं, उनके लिए क्या डिफरेंट रूट्स हैं टू अर्न मनी अपार्ट फ्रॉम देयर लाइव शो टिकटिंग? वन इज योर मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू. हो सकता है आप कंटेंट फर्स्ट हो या तो आप लाइव शो फर्स्ट हो या तो दोनों एवरीवन डजंट हैव. तो अगर हम टॉप के 15-20 भी हटा दें, हम सॉर्ट ऑफ सोचे कि 20 के नीचे, राइट. द वन थिंग विच इज ग्रेट अबाउट आई वुड से नियरली ऑल कॉमिक्स इज दे आर ग्रेट राइटर्स, क्योंकि वो खुद के लिए मटीरियल लिखते रहते हैं. तो राइटिंग इज अ वेरी बिग स्पेस फॉर देम. अब राइटिंग में भी अलग अलग किस्म के स्पेशलिटीज हैं. जैसे से कुल्लू इज समवन हु वी मैनेज, जो हु इज अ अमेजिंग राइटर. ही कैन राइट फिक्शन, ही कैन राइट कॉमेडी, ही इज राइटिंग अ फिल्म राइट नाउ. अभी आई कांट टॉक अबाउट इट क्योंकि वो निकला नहीं है. तो ही इज डूइंग राइटिंग ऑफ ऑल सॉर्ट्स. सेकेंडली अनदर थिंग इज कंसल्टिंग फॉर ब्रांड्स, जो हम जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे. सो कैन यू डू ब्रांडेड वर्क बट नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट एज अ ब्रांड कंसल्टेंट ऑन द बैक ऑफ अ कैमरा. ये एक और रूट हो जाता है. थर्ड रूट है एक्टिंग. Some comedians are also great actors. You know, right from a Zakir to a Bassi to Gopal Dutt, who also does comedy, acting and musical Gopal theatre. Dutt तो सर ओजी है सर, वो तो तेरे नाम से फिर तो बहुत पुराने चले गए हम. Absolutely. वो उनका तो he is one of the most dynamic people. बट उन्होंने जगह बनाई है ताकि दूसरे कॉमिक्स भी अब यू नो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा जा पाए. क्योंकि क्या होता है ना, आपको एक बहुत आपको वो कास्टिंग इंडस्ट्री के साथ वो लैंड करना पड़ता है कि यार आई एम नॉट जस्ट अ कॉमिक, आई एम ऑल्सो अ राइटर. और वो हो चुका है अब. एंड पीपल लाइक गोपाल जी हैव सेड दैट कि यार आप मल्टी फैसेटेड भी हो सकते हो. एक टैलेंट जरूरी नहीं है कि आप ये मल्टी डायमेंशनल टू सस्टेन एट लीस्ट इन दैट कॉस्ट. क्योंकि वायरलिटी का तो वैसा है कि आज है कल नहीं है. बिल्कुल. बट मनी यू विल नीड फॉर लाइफ. या comedy industry has fared very well, and comedians are doing outside of India tours and everything happening great for them. But उसी के साथ साथ around that 2016-15 एक और आर्ट फॉर्म थी पोइट्री और स्टोरी टेलिंग. ठीक है, पोइट्री वाले पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग, पोइट्री आर्टिस्ट आर स्टिल स्ट्रगलिंग. जिस हिसाब से कॉमेडी ने ग्रो किया है उस हिसाब से नीदर पोइट्री नॉर स्टोरी टेलिंग, इन दोनों ने ग्रो नहीं किया. कैन यू सी एनी रीजन वाई? आई थिंक वो ग्रोथ हो रहा है. वो एक इंटरेस्टिंग स्पेस है. और वो स्पोकन वर्ड पोएट्री ये मेट्रोज में उतना ग्रो नहीं हुआ या पॉपुलर कल्चर में उतना एक्सप्लोर नहीं हुआ. बट वो शुरुआत हो गई है और बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं. तो आई फील वो पाथ बन रहा है धीरे धीरे. थोड़ा टाइम लग रहा है. यू आर राइट. स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट इज नॉट सेलिंग 3000 टिकट्स, दे आर सेलिंग 300 250. बट वो ग्रो हो रहा है धीरे. बट आई थिंक इसमें ना क्या करना है कि कोलैबोरेशन हमें और देखनी पड़ेगी. एंड आई थिंक दैट वो जो हम पहले भी बात कर रहे थे ना, द कंटेंट फीडिंग इनटू लाइव, आई थिंक द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट स्पोकन वर्ड पोएट्री वगैरह वो शेयरेबल बहुत है. क्यों आप सुबह उठ के अगर आपने एक ऐसी रील देख ली जिससे आपका दिन बन गया ना, आप वो 10 लोगों को भेजोगे. अब आप 10 लोगों को भेजोगे, उसमें से कोई 2 तो निकल के आ जाए जो कहेंगे कि अरे शी इज कमिंग टू माई सिटी, आई शुड गो वॉच द शो. सो आई फील कि स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट पोएट्री पोएट्स जो पहले सिर्फ लिखते थे, अब उनको अपने कंटेंट को ना विजुअलाइज करना पड़ेगा, या तो ऑडियो या तो वीडियो में, ताकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके. और इंटरनेट इज़ ब्यूटीफुल. अगर वो लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाए, दैट्स व्हेन द लाइव वाला कन्वर्जन विल आल्सो हैपन. ओके. आर्टिस्ट इज one person. There is another person with artist who is the artist manager. हाँ जी. And you have a lot of artist manager in your organization. So if somebody who is starting out, who is a college student, who thinks that I can manage all of this, who is into the event industry, what do you look in a person कि इसे hire किया जा सकता है as an artist manager? So artist management, I would say, is the most difficult job in the world. Right? It's one of the most. हाँ, ये बहुत ही मेरे को लगता है बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है, बट ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग जॉब्स. तो एक तो आप आर्टिस्ट मैनेजर तभी बनो जब आप पैशनेट हो उस चीज़ के बारे में. ये वो 9 to 5 वाला जॉब बिल्कुल नहीं है. ठीक है. आप देयर इज़ नथिंग. आप कुछ पढ़ नहीं सकते हो आर्टिस्ट मैनेजर बनने के लिए. हाँ, कोई कोर्स नहीं है. आर्टिस्ट मैनेजर्स हैं जो पहले लॉयर थे. आर्टिस्ट मैनेजर्स हैं हमारे पास जो पहले इवेंट्स में काम करते थे. हमारे पास आर्टिस्ट मैनेजर्स ऐसे भी हैं जो कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस रोल से शिफ्ट करके आए हैं.
पर आर्टिस्ट मैनेजर बनने के लिए आपको सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए, वो पैशन हो उस चीज़ के लिए. You have to be on your toes. You have to be on your toes. You have to want to help another person become the best they can in that space, right? And artist manager जैसे आपका, अगर आप कॉलेज से निकल के आते हो, you are a young person who wants to explore artist management. और ये ऑब्वियसली वेरी करेगा, आप म्यूज़िक में काम कर रहे हो या कॉमेडी में या बॉलीवुड में या फैशन में, कौन से वाले स्पेस में. बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एज अ ह्यूमन बीइंग आपके आर्टिस्ट के साथ कनेक्ट करना नंबर 1. आर यू एबल टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद पीपल? दैट इज 1-on-1 कि आर्टिस्ट और मैनेजर का आपस में कनेक्ट है, वो बॉन्ड है, दैट इज ग्रेट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, द डील्स, द ब्रांड डील्स, this is something which the artist manager handles. Yes, multiple shows, things. So you have to be a great operations person. कि how do I manage logistics? You know, maybe आपके पास और लोग होंगे हेल्प करने के लिए. ये नहीं है कि आप ही टिकट बुक कर रहे हो, बट आपने क्या ये आप विजुलाइज कर सकते हो क्या कि भाई 10 सिटीज जाने हैं, मैं कैसे बेस्ट प्लान करूँ. ब्रांड डील जब आएंगे, किस ब्रांड के साथ, कभी कभी ना पैसे भी बहुत अमेजिंग होंगे, पर नहीं, मेरे आर्टिस्ट को नहीं करना चाहिए बिकॉज ये बैठता नहीं है. दिस इज नॉट द राइट ब्रांड फॉर माई आर्टिस्ट. बीइंग एबल टू थिंक अबाउट दोज थिंग्स, negotiation skills, very important, right? Because you have to get the best deal for your artist possible. वो आप negotiate कैसे करो, right? Also PR, your understanding of PR. जी हाँ, आप एक PR एजेंसी के साथ काम करोगे, आप एक स्पेशलिस्ट के साथ काम करोगे, बट एज अ मैनेजर बक स्टॉप्स एज यू. यू आर द लास्ट पर्सन जिसको ये समझ में आना चाहिए कि यार इस आर्टिस्ट के लिए what is the right kind of places to turn out, what is the right kind of interviews to do, एंड वो सारी चीज़ें. तो मैं क्यों कह रहा था कि आर्टिस्ट मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स, बिकॉज यू आर लाइक अ स्विस आर्मी नाइफ. आपके पास इतने स्किल सेट्स चाहिए कि यू हैव टू बी एबल टू थिंक अबाउट एवरी थिंग वॉट इज़ राइट फॉर योर आर्टिस्ट और योर ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट. और आप ये कहीं सीख नहीं सकते हो. देयर इज नो आर्टिस्ट मैनेजमेंट स्कूल, देयर इज नो आर्टिस्ट मैनेजमेंट कोर्स. होंगे कहीं कोर्सेज, बट ऑनेस्टली ऑन द जॉब लर्निंग इज द वे टू डू. एंड इफ़ यू लाइक द स्पेस यू आर इन, तब तो वो तो सबसे बड़ा बोनस है. अगर आप म्यूज़िक के बारे में पैशनेट हो और आपको म्यूजिशियंस मैनेज करने हैं, बीइंग पैशनेट अबाउट इट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू गेट यू द मोस्ट सक्सेस. एंड सम ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट मैनेजर्स इन द कंट्री, राइट, हु आर नाउ 14, 15, 20 years artist managers, they've helped artists build careers in ways that the artist would not have been able to do it alone. तो वो आप में होनी चाहिए कि I exist to be able to help people build. Because you're not just building for yourself. Yes. Yeah. You are building for someone तो else. है ही नहीं उसमें, for yourself तो उसमें है ही नहीं है. If somebody is artist manager, yes, वो अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा. He is eventually dedicated to that other person जिसे वो मैनेज कर रहा है. जी, तो वो बहुत selfless job है वो. Selfless also, but उसमें मजा भी आना चाहिए, right? आपका आर्टिस्ट जब स्टेज पे खड़ा होता है और वहाँ पे 10,000 लोग तालियां बजा रहे हैं, ऑब्वियसली द आर्टिस्ट इज फीलिंग ओवरवेल्म्ड, पर स्टेज के पीछे एक आर्टिस्ट मैनेजर भी है जो ये देख रहा है कि यार मेरा आर्टिस्ट है जो 10,000 लोगों के सामने is being able to do this, and there are 20 people in the audience who are crying. The artist manager is as emotional about it as the artist, and I think that's when you get into artist management. 9 to 5, not at all. 9 to 5, it is not a 9 to 5 job at all. No, not at all. Okay. One last question, then I'll have some quick fire questions with you. So, how does a brand look at a collaboration or while signing an influencer? What are those? How does data influence their decision? Yes. तो the beautiful thing about influencer marketing आज है कि influencer marketing अब एक साइंस बन चुका है. इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें क्रिएटिविटी नहीं है. स्टोरी टेलिंग और क्रिएटिविटी इज तो नंबर 1, बट उसके पहले का जो काम है, हाउ डू वी वर्क विद द राइट इन्फ्लुएंसर, किसके साथ काम करना चाहिए, क्यों हम काम भी कर रहे हैं. यू नो, आजकल ये हो गया कि बहुत सारे D2C ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर रहे हैं और फिर सुनने में आता है कि अरे यार हमारे तो सेल्स ही नहीं हुए, इतना स्पेंड हुआ पर हमारे और सेल कुछ नहीं आया. पर क्या आपने प्लानिंग स्टेज में ये इंश्योर किया था कि आप उन लोगों के साथ काम कर रहे हो जिनके पास कन्वर्जन हाई है. और अब ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि डेटा भी अवेलेबल है. जैसे हमारा ही टूल ले लो, हाइपोथेसिस, राइट. हाइपोथेसिस जो हमने बनाया है टूल, उसमें क्या होता है, आप 100 से भी ज़्यादा फिल्टर्स यूज़ कर सकते हो पहले चूज़ करने के लिए कि कौन से इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करें. राइट. सो आपने सोचो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने डिसाइड कर लिया कि हमें भोपाल में वी नीड टू, आपका जो ब्रांड है, ऑडियंस है आपका मॉम्स, यंग मदर्स. तो हाउ डू यू फाइंड द राइट सेट? तो पहले आप जियो टारगेट करोगे कि यार ये भोपाल में होने चाहिए ये इन्फ्लुएंसर्स.
पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप भोपाल में रह रहे हो तो आपका ऑडियंस भोपाल से है. हो सकता है आप भोपाल के क्रिएटर हो बट आपका ऑडियंस सारा बैठा हुआ है बॉम्बे में, तो फिर वो कैंपेन में अगर ख़त्म हो गया वहीं के वहीं. तो आई थिंक वो साइंस जो है कि इन्फ्लुएंसर्स की ऑडियंस कहाँ की है, मेरा कैंपेन क्यों बनाया जा रहा है. अगर मैं अवेयरनेस सिर्फ क्रिएट कर रहा हूँ या मैं सेल्स करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि टिकट खरीदो एक इवेंट के लिए, उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे और ये जो सारा डेटा अवेलेबल है आप उसके बेसिस पे पहले चूज करोगे कि हु आर द राइट क्रिएटर्स टू वर्क विद. उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे कि अब हमने डिसाइड तो कर लिया कि क्रिएटर्स क्या है, हर एक क्रिएटर के साथ मैसेजिंग कैसी होनी चाहिए. आपका कैंपेन तो एक होगा ओवरऑल विच इज़ ग्रेट, पर ये द वर्स्ट थिंग टू डू इज कि एक आपने कॉपी लाइन भेज दिया सबको और सबको बोल दिया पेस्ट करो, बिकॉज नाउ ऑडियंसेस कॉल इट आउट. तो आप फिर यू विल हैव टू वर्क विद एच क्रिएटर टू से कि यार आपका अंदाज क्या है, इसकी लैंग्वेज ये है, ये लैंग्वेज क्या है, आपकी ऑडियंस को क्या अच्छा लगता है, राइट. और उसके बेसिस फिर वो मैसेजिंग क्राफ्ट होगी. और फिर थर्ड है कि आप ट्रैक करो कि यार हाउ इज़ द कैंपेन गोइंग, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है क्या हमें स्टोरीज डालनी चाहिए कि हमें रील बनाना चाहिए. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रील विल गेट यू द मोस्ट अमाउंट ऑफ इंगेजमेंट. हो सकता है वो स्टोरी से आ जाए, आप स्टोरी पे भी क्या करवा रहे हो फॉर एंगेजमेंट. तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि फिर वो ब्रांड को ये अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि वो मैक्सिमाइज करे जो इम्पैक्ट होने चाहिए. ऑन द अदर साइड क्रिएटर के लिए भी वो बेटर है, क्योंकि क्रिएटर को भी पता है कि भाई गोल बहुत क्लियर है. जब मैं इस ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ, ब्रांड ने हमें कहा है कि इस चीज़ का ये रिजल्ट होना चाहिए, तो फिर क्रिएटर भी उसके लिए काम करेगा. तो आई फील वो डेटा ड्रिवन अप्रोच अभी बहुत अच्छा हो गया है. एंड वो अलाइनमेंट ऑफ क्रिएटर एंड द ब्रांड टुगेदर वो बहुत अच्छा हो गया है. बिल्कुल. ओके, थैंक यू सो मच for killing my curiosity about all of the live management, live events and all of the stuff I had in mind. There are certain quick fire questions I have with you. So your favorite live event experience as an organizer, and you can talk about OML as well, and you can talk about individually as well. So my favorite live event, and I'm not being biased, has been the first time I attended NH7 Weekender, जो OML का फेस्टिवल था. मैं एक ब्रांड मैनेजर हुआ करता था एक ब्रांड फ्रूटी के लिए. मैं उस फेस्टिवल में गया, मुझे वो फेस्टिवल इतना अच्छा लगा, मैंने दूसरे दिन रिज़ाइन कर दिया, मेल लिखा उस टाइम के फाउंडर्स को कि आई हैव एक्सपीरियंस द NH7 वीकेंडर एंड इट हैज़ चेंज माई लाइफ. आई हैव नेवर बीन टू एन इवेंट लाइक दैट. एंड मैंने OML में अप्लाई किया और फिर 3 महीने बाद मुझे OML में जॉब मिल गई. तो दैट फॉर एवर विल बी माई बेस्ट फेस्टिवल एक्सपीरियंस इन माई लाइफ. एंड जॉब मिल रही है, अब तो CEO बन के बैठे हो, तो नाउ यू हैव गॉन टू अनदर लेवल. One artist you are most excited to see grow under OML? This definitely has to be Kullu. Really excited. I think the way Kullu understands the audience, the way he has an ability to think as a creative mastermind, and the way he is growing. He's right now in Australia touring, right? His first Australia tour in such a short period of time. So I genuinely think amazing things are going to happen for Kullu. What's that one innovation you wish to bring into entertainment industry? I think live entertainment में the one innovation I would love to see, especially India के अंदर, is infrastructure development. I think वो infrastructure development जिसके बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे, वो थोड़ा स्लो हुआ है over the last 10-15 years, पर अब वो पिकअप कर रहा है. तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अमेजिंग हो जाए कि आर्टिस्ट के लिए वो प्लग एंड प्ले बहुत आसान हो जाए, कि हम यहाँ पहुँच गए, सोचना ही नहीं पड़ेगा, साउंड तो अमेजिंग होना ही है, बेस्ट ही होना है. हाँ. क्योंकि प्लग किया, परफॉर्म किया, निकल गए. आई थिंक उतना अगर हम आर्टिस्ट के लिए इकोसिस्टम क्रिएट कर दें कि भाई हम तो टूर कर सकते हैं विदाउट वरीइंग, और छोटे छोटे जगहों में, जैसे आई वांट प्लेसेस लाइक अ भोपाल, आई वांट प्लेसेस लाइक अ जमशेदपुर टू हैव वेन्यूज विच आर अमेजिंग, कि भाई हर जगह आर्टिस्ट पहुंच सके जहां उनके फैंस हैं. अभी क्या हो रहा है, फैंस हैं हर जगह पर आर्टिस्ट वहाँ पहुँच नहीं पा रहे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए तो वो तो बस एक्सप्लोड हो जाएगा. One artist you could manage dead or alive under you? I think one artist, ऐसा कोई आर्टिस्ट हो जिसको, जो मर गया है, जिसको अगर चांस मिले, अगर हम मैनेज कर पाए, मैं बोलूँगा फ्रेडी मर्क्यूरी, क्योंकि वो मेरा पर्सनली वन ऑफ माई फेवरेट म्यूजिशियंस है. आई थिंक ही इज़ अ लेजेंड, जिसने म्यूज़िक इंडस्ट्री को बदल दिया, जिसने ऑल्सो ये कर दिया प्रूफ कि यू डोंट हैव टू कन्फॉर्म टू नॉर्म्स. उसने जिस तरीके से परफॉर्म किया, ऑडियंस एक्सेप्टेड हिम.
उसने अपने लाइफस्टाइल के बारे में भी ही डिड नॉट हाइड. उसने बता दिया लोगों को व्हाट ही इज़, एंड ही वाज एब्सोल्युटली अ ट्रेल ब्लेजर उस टाइम पे उसके लिए. हाँ, वो इंडिया से भी था, तो वो लगाव और हो जाता है. तो आई वुड लव टू मैनेज फ्रेडी मर्क्यूरी. Okay. What's the biggest risk that you have taken at OML and that has paid off? I think जो हमने OML में one of the biggest risks we took was back in the day jumping into comedy. Oh. Right? Comedy was non-existent in India. And it won't be fair for me to say I did it. I was not one of the people who sort of drove that. But OML में there were people who believed in it and who decided that nahi, comedy is something we need to build in India. Till today, I think the one organization that has put in everything, whether it was taking risks on shows without knowing whether tickets will sell, whether it was helping build the YouTube ecosystem of saying कि नहीं यार comedy should be on YouTube, it should grow, all of these things जो उस time के OML के founders थे, what they have built for comedy in India, I think no one else has built. And अभी वो देखना कि वो कैसा evolve हो गया है, how it has grown India में भी, internationally for Indian comics, it's a risk that was worth taking and completely worth it. Nice. हाँ, मतलब even if I remember correctly, तो बचपन में when I used to follow all of these artists and सबके अकाउंट में या बायो में कहीं @oml.in होता ही था in the email ID. फिर I used to wonder कि कौन है ये लोग. Then I figured out कि अच्छा ये कोई एजेंसी है जिनका कोर फोकस कमेडियन है. And then I later got to know that okay, you are doing different things as well. Your favorite city to host events? I would like to say Delhi, even though I live in Bombay. दिल्ली में मज़ा आता है इवेंट्स करने में, चैलेंजिंग भी होता है, ठीक है, बिकॉज लोग सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री पासेस भी दिल्ली में मांगते हैं. बट यहाँ पे जो वाइब आता है ना शो का, कुछ भी हो जाए, वो बहुत मज़ा आता है. तो आई थिंक दिल्ली इज़ एन अमेजिंग प्लेस टू डू लाइव इवेंट्स. And then the last question is one thing you want to change in the current creator economy system. I think the one thing जो है ना, which I would like to not change, but I would like more and more, is that I feel like young creators need to develop a little more patience. Right? I think what's happened is क्या हुआ है कि पैंडेमिक में सुपरचार्ज हो गया कि यू नो आप क्रिएटर बन जाओ. पैंडेमिक में हम घर पे बंद थे, तो द ओनली थिंग वी कुड डू वाज स्पेंड टाइम ऑन डिजिटल. तो पैंडेमिक सुपरचार्ज द ग्रोथ ऑफ बहुत सारे क्रिएटर्स. वो सुपरचार्ज ग्रोथ हमेशा नहीं होता है. तो एज अ क्रिएटर जो आप अगर आप अपने इंडिया के टॉप 100 क्रिएटर्स देखोगे, वेदर इट्स समवन लाइक अ तन्मय और इवन लाइक अ रणबीर अलाबादिया, you know how many podcasts he made before his podcast started doing really well. Many, right? And I think वो patience is something जो नहीं है, but I think वो थोड़ा कम हो गया है. You know that journey to become the top 1% or the top 10% in your category is a long journey. And I would love for more and more creators to have that understanding. While overnight success is possible, but it also the downfall of that overnight success is also very fast. क्योंकि एक वायरल वीडियो निकला, आप उस वायरलिटी के बेसिस पे ठीक है 1 महीना 2 महीना निकाल You should have a plan to sustain. That is 100%. one thing which and consistency. और and also वो जो हम बात कर रहे थे, राइट, कि think about multiple things you can do. मतलब अगर आप सिर्फ डांस क्रिएटर हो तो ठीक है, ऑब्वियसली फोकस ऑन बीइंग अ डांस क्रिएटर, बट आप डांस के अंदर वो कितने कोलैबोरेशंस कर सकते हो, आप कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो, आप कैसे एक म्यूजिशियन के साथ काम कर सकते हो. क्योंकि एंड द वन बिग थिंग इज हाउ डू यू कीप एक्सपैंडिंग योर ऑडियंस एंड कीपिंग देम एंगेज. ये तो सब लोग कहते हैं, बट आई थिंक उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस, बिकॉज वो ओवरनाइट नहीं होता है. Tushar, thank you so much for being on the show and sharing your insights. It was wonderful to host you, and also I wish the things which you talked about the experience of the live event industry, about giving freebies to the people who are going to attend there, about the dream collaborations which you have in mind, or maybe the smaller creators and people who are into the content creation space will understand a lot of insights from this conversation as well. And of course, the main reason why I am doing this is next time when you are in Delhi, I can ask for free passes. That is the underline statement. Thank you so much for being on the show. The show name is To All Them Curious. You can tune into Spotify, JioSaavn,
and Apple Podcast as well. And if you have not subscribed, please hit the subscribe button.